नमस्कार एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। अन्हार में टटोलना नहीं, मंजिल को देखते रहना, आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। पीछे से अनजीनत पुकार, पीछे से अनजीनत पुकार, खाना पीना और सोना, खाना पीना और सोना। पैदाइश आग मौत की टकरार, पैदाइश आग मौत की टकरार, आना जाना और रोना,
आना जाना और रोना, रुकना नहीं है, सोचना नहीं कुछ, रुकना नहीं है, सोचना नहीं कुछ, तुम्हें है सामने चलना, तुम्हें है सामने चलना, आगे बढ़ते जाना मुसाफिर, आगे बढ़ते जाना। आगे जो है नई जिंदगी, आगे जो है नई जिंदगी, रोशनी शहर से भरी, रोशनी शहर से भरी, अनजाने अनमोल मोहब्बत, अनजाने अनमोल मोहब्बत, अपनापन की चोरी, अपनापन की चोरी, हमरा ही है एक ही प्यारे, हमरा ही है एक ही प्यारे, उन्हीं को है पहचान। Today discuss transformation, the future, innovation, equity, and excellence in higher education. University board faculty get student leaders, board member, statement and faculties, and future leader. We gather today is a critical crossroads in academics history. The definitions of high level education in shifting benefits our feet in no longer just about the passing down information, it about speaks lifelong costly and agility. Today we are face a double challenge. We must balance academics rigor with global accessibility, the rapid rise of the technology, digital tools, methods that we change how we teach. We must move memories inside. We must focus on critical thinking, ethical and ethical problem solving. The achieve through the excellence we will face on the three mind of steps parlors. First, academic innovations, global equity and research excellence. Academic innovations, we will integrated advanced technology into our core curriculum.
Global equity, we will expand a financial aid and support, advice and technicals. We will research excellence. We will increase funding our stable global solutions, the transformation, equity, change of our face and trust for our student. Let us build a environment where failure I see as a lessons and innovations in our standard. Thank you. I think second parts official policy memorandum to all faculty members, department and chairs and academic staffs from the office of the vice chancellor, progressive review committee. The subject implementations of the 2026 strategic education reform framework objects. The memorandum outline and mandatory updates are the institution curriculum framework. There are update aim of aligns our the teaching method with modern global standards. Second, all department must implement employing changes by the start of the next academic semester. Second, curriculum updates our course structure in schedules, activity, learning components. Assessment shift replace 30% of the traditional exams of projects based testing. Digital integration complete a training of the new learning management platform. Complaints and timeline. July 1, 26 deadline of the department to submit a received course syllabus. August 2026 completion deadline of mandatory faculty training workshops. Please directly any questions regarding the change your the respective department chair.
कहने का मतलब है कि जो अभी एजुकेशन पॉलिसी है अभी इंडिया के 2020 में जो लिया गया है वो सबसे गलत रहा है, गलत है। इस पॉलिसी के अंदर अमीर के बच्चे पढ़ पाएंगे और गरीब के बच्चे कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल और बंद हो जाएंगे। तब वो जो गरीब बच्चे हैं जो मेहनत मजदूरी करके पढ़ रहे हैं, अपना खर्चा जुटा रहे हैं कहीं से, तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। जो पॉलिसी गवर्नमेंट की ओर से लाया गया है वो सबसे देश के हित के लिए और इस गरीब बच्चों के लिए बहुत घातक है, घातक ही नहीं जानलेवा भी है। जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेंगे, जिसके पास नहीं होगा उसका कोई सहारा नहीं होगा। तो ये पॉलिसी सबसे बड़ा गलत है। एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट को हर एक उस नागरिक को, हर एक उस व्यक्ति को जो इस देश में रह रहे हैं, चाहे देश का हो या विदेश का हो, किसी भी कंट्री का क्यों नहीं है, उस बच्चे की उस परवरिश, उस बच्चे की देखभाल, उन तमाम चीज़ों, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उसके जिम्मेदार उसको वहाँ के गवर्नमेंट होता है, वहाँ के सिस्टम होता है। उसको उस लेवल पे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है और ज़रूरी है। नहीं तो करीब नीट के लिए जो है 30 लाख युवाओं का भविष्य और परिवार को तो बर्बाद कर ही दिया है सरकार, कई सालों से करते हुए आ रहा है। इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हर बार की भांति, हर बार की तरह नए नए योजना लाते हैं। योजना होता है सिर्फ लालच देने के लिए और जनता को मूर्ख बनाने के लिए। उस पर कोई फोकस नहीं है। ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो कुछ भी फोकस नहीं है, जीरो फोकस है इंडिया के अंदर। अच्छी स्कूल देख लीजिए, अच्छी कॉलेज देख लीजिए, गवर्नमेंट की जो सिस्टम है देख लीजिए, गवर्नमेंट के कॉलेज देख लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए जो विलेज लेवल पे है, जो रूरल एरिया में है। उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो अभी तक में जो है कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आगे उसकी सभी युवा, ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति, धर्म, किसी भी समुदाय के हो क्यों नहीं हो, बिलोंग करता है, इस देश में रह रहा है, वो तमाम नागरिकों का जिम्मेदार गवर्नमेंट होता है वहाँ का। उसको नौकरी क्यों नहीं है, किस कारण से नहीं है, तो उन सब मुद्दों पे कभी बात नहीं होता है। यहाँ बात होता है लड़ाने के लिए। हाल ही में जो बिहार में जो घटना घटा है, अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, मैं उसका क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा गंदा सोच और विचार है। एक दूसरे को, सबसे पहले तो नीट के पेपर को जो लीक हुआ है उसको दबाने और उसको डाइवर्ट करने के लिए जो है ना ये मुद्दा उठाया गया है, ये लड़ाया गया है दोनों तरफ से। दूसरी चीज़ें वहाँ पे लोगों में एक हिंदू मुस्लिम की जो है एक नेगेटिविटी की जो है ना, जिसे पॉइजन किलर बोलते हैं, वो घोलने के लिए तैयार किया गया है। जो देश के और सिस्टम और सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोगों को समझना है पड़ेगा। लोग नहीं समझेंगे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर के बयान और चीफ मिनिस्टर के जो पॉलिसी है वो सबसे गलत है। जो बनाया गया है, जिसको बनाया गया है, वो किसी काम के नहीं है। जो अपराधी है, जो गलत आदमी है सिस्टम में, ये आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है।
वो सबसे गलत आदमी को आपने बनाया है, कैसे चुना गया है गलत आदमी को, इसी तरह से बंगाल में हुआ है। जबकि वो केस में फ्रॉड में पहले से है, उन आदमी को जो है वहाँ बनाया गया है। दूसरी बात, इस तमाम युवाओं को समझना चाहिए, ये राजनीति का रोटी सेकने के लिए जो है नेता लोग करवाए हैं। अगर कोई एग्जाम होता है, या अभी राजनीतिक में सीधी सी बात, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी अगर चुनाव इलेक्शन होता है तो वो 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। ऐसा गवर्नमेंट का कौन सा एग्जाम होता है जो आपको महीने, 6 महीने, 2-2, 3-3 साल जो है ना उसका एग्जाम में, उसके रिजल्ट्स में लग जाते हैं। ऐसा क्या करवाते हैं आप? जो राजनीतिक में 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है, आपको इतना समय लग जाता है डाटा को कलेक्ट करने में, चेक करने में। तो सबसे बड़ी चीज़ें क्या है, ये एक चीज़ें है कि साफ साफ इसमें जो है जितने भी उसमें सेलेक्ट होंगे, जितने भी उसकी क्राइटेरिया बनेंगे, उसमें नेता जो है अपनी रोटी सेकेगा पैसे कमाने के लिए गरीब लोगों से। उसमें अनाप शनाप घूस लिया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जो उसमें आएंगे उसमें जो है काट छांट होगा, उसमें जातिवाद के कीड़े घुसेंगे। इस तमाम चीज़ें जो है ना उनके दिमाग में चलता रहता है, यही सब चीज़ें होता है। क्योंकि मैं कई सारे एग्जाम को कंडक्ट कराने गया हूँ, देखा हूँ और पाया हूँ अभी तक में। और जितने भी हमारे कई सारे पेरेंट्स है जो जुड़े हुए हैं, जो मुझसे वो लोग बड़े बड़े लेवल पे एग्जाम्स वगैरह करवाते रहते हैं। कई IAS IPS अधिकारी जो है, उन तमाम लोगों से जब बातचीत होता है तो उन ऐसे ऐसे चीज़ें खोलेंगे जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते कि इस लेवल पे इस तरह की घटिया कामें भी होता है क्या। ग्राउंड लेवल पे कोई वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है आज के डेट में। देखा जाए आज इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, या हेल्थ मैनेजमेंट को देख लीजिए, रूरल डेवलपमेंट की बातें करें तो उसमें भी कुछ भी नहीं है। और फार्मर के लिए तो है ही नहीं, कोई योजनाएं ही नहीं है। और साल में जो है डेली का 5 रुपये मान लीजिए, हाँ इसी तरह से होगा, 5 या 6 रुपये डेली का। वो भी मैंने ज़्यादा बता दिया। क्या इसी के लिए जो है किसान जो है मतलब मेहनत करे? आप साल में जो है 2,000 डाल दिए, उससे क्या हो जाएगा? आप सिंचाई के लिए प्रॉपर प्रबंध नहीं कर पाए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आप फ्री नहीं दे पाए, तो आप क्या कर पाए? देश में कुछ नहीं कर पाए। अभी पर हाल ही में जो पेट्रोल डीजल जो बढ़ने का रीजन है, एक्चुअली देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा रेट नहीं है, सब चीज़ आ रहा है। ये सिर्फ आपको न्यूज़ बताने के लिए, ये सब करने के लिए जो है ना, ताकि गुमराह करने के लिए जो है ना आपको, ताकि नेता जो है उस चीज़ की कॉस्ट बढ़ा करके आपसे जो है ना स्कैम के तहत लूटा जाए। सबसे पहले जो है रिफाइनरी के लिए सबसे पहले था गवर्नमेंट का जो है कंपनी था, खुद का गवर्नमेंट का। तो वो चीज़ें जो है कम रेट पे चीज़ें कॉस्ट पे तैयार होता था, क्योंकि जनता की थी। अब क्या है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट किसके है आपको भी मालूम है। अब वो कैसे लूटेंगे आपको भी मालूम है। पेट्रोल के अंदर अगर इथेनॉल अगर जाता है, अगर 1% भी जाता है तो वो इंजन जो है, जो 4 साल चलेगा, वो 1 साल में ही खत्म हो जाएगा उसकी चीजें, वो तमाम पार्ट्स बर्बाद होगा। ये कंपनियां ने इतना इनको घूस दिया, पॉलिसी दिया, ताकि इथेनॉल जो है ना पेट्रोल में मिलाया जाए, बेचा जाए, ताकि पार्ट्स का जो है ना सबसे ज़्यादा बिक्री हो गाड़ियाँ में। लोग कार खरीदेंगे, जल्दी ख़राब होगा तो जल्दी उसका पार्ट्स का सेलिंग होगा, सेलिंग होगा तो कंपनी की रेवेन्यू जनरेट होगा। किसका जो है ना फायदा इसमें हो रहा है वो सभी लोग समझ ही गए होंगे।
राजनीतिक बातें करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो देश में अभी वर्तमान में हालात जो चल रहा है, जो चीज अभी मुद्दा उठा हुआ है, उनके ऊपर बोलना भी जरूरी है। चुप रहना वो कायरों का काम है, हम चुप नहीं रह सकते हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, क्यों गरीब जनता और ज्यादा ना पीसा जाए। सोचिए न जरा, जब बांग्लादेश जो है अपने से जो है क्रूड ऑयल लेता है, अब वो 51 रुपये या 55 रुपये ऐसे लीटर जो है ना बेच रहा है अपना पेट्रोल डीजल, और इंडिया में वही चीजें का देखिए रिफाइनरी का कितना कॉस्ट लगा रहा है सब चीज। तो यहाँ सबसे बड़ा जनता तक वो चीजें ना पहुंचे, सबसे बड़ा स्कैम जुड़ा हुआ है। हाल ही में कई सारे पुल जो बिहार में गिरा है उसका कोई जांच नहीं है, उस पर कोई अधिकारी या कमेटी कोई नहीं बैठाई गई है। सब ऐसे धड़ल्ले से चल रहा है, ये सबसे बड़ा लूट मार खसोट चल रहा है। हाल ही में कई 100 एकड़ जो है जमीन लोग गरीब लोगों के थे, जंगली आदिवासी लोगों के थे, उनको काट करके मार के भगा तबाह करके आर्मी के थ्रू सीआरपीएफ के तहत और भी न जाने क्या क्या चीजें करके जो है ना भगाया गया है। उनके मुद्दे को, उनकी जमीन को लूटा गया है, पेड़ कटवाया गया है। तो विनाश का तो पहर आ ही चुका है। अब मगरमच्छ का आंसू बहाएंगे नेता जा करके, एक पेड़ लगा देंगे, फोटो खिंचवा करके जो है मगरमच्छ का आंसू बहाएंगे। यही सालों से करते हुए आ रहा है। इसीलिए जागिए, हमारा संघर्ष और लड़ाई हमेशा जारी रहेगा उन तमाम मुद्दों के लिए। किसी भी कंट्री का हो, उस देश की लीडर की ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना गुजारिश करूंगा, चाहूंगा कि आप पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के बारे में पढ़िए। प्राउड क्या है, प्राउड के तहत कैसे उपयोग समाज को डेवलप किया जाएगा, कैसे समाज में एक एक लोगों का आध्यात्मिक विकास होगा, भौतिक विकास कैसे होगा। वर्तमान में जो पॉलिसी है, एजुकेशन सिस्टम मैनेजमेंट कैसे सही होगा, कैसे हर एग्जाम लीक होते जा रहा है, हर एग्जाम जो है सोचिए ना कि एज बीतते जा रहा है, युवाओं के पास कोई स्कोप नहीं है, किसी डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, लूट खसोट मची पड़ी है। कई लाखें वैकेंसी जो है रुकी अभी न, आज के डेट में ना भी तो अगर चाहे तो 11 से 12 लाख जो है ना वैकेंसी जो है रेलवे डिपार्टमेंट में रुकी हुई है। ये मिनिमम आंकड़ा है, इस पे हर साल रोटी सेक रहे हैं ये। क्योंकि नेता का सबसे बड़ा हथियार है कि एजुकेशन सिस्टम और युवाओं के जो है ना सबसे पहले जो है ना नौकरी उकरी से वंचित कर दो, ताकि वो जो है ना उन सब चीज़ों में मुद्दा में भटकाते रहो, उसके उपयोग करते रहो।
इन्हीं सब चीज़ों के लिए हर चीज़ के नेता जिम्मेदार नहीं है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, जैसे नेपाल में हुआ है और भी कई कंट्री में चल रहा है ये सब चीज़ें, वार जो चल रहा है। सोचिए ना, एक दूसरे इंसान को दूसरे देश मार काट रहा है लेकिन सब चुप है। किस लिए चुप है भाई? इंसानियत के नाते किसी भी मनुष्य को, सबको जीने का अधिकार है, किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी कंट्री क्यों नहीं, कोई भी कंट्री में सब मनुष्य को, या कोई एक चींटी भी है तो उसको पूर्ण तरह से आज़ाद है वो प्रकृति की तरफ से जीने के लिए। अगर कोई उसे मार रहा है, काट रहा है, तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी हानि है। इंसानियत है ही नहीं उन लोगों में। और जो चुप बैठा है वो सबसे बड़ा जो है ना दलाले हैं, लुटेरा है। वो देश सबसे बड़ा गद्दार है। वहाँ के लोग, वहाँ के सिस्टम। सोचिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे को जो है ना यूं ही जो है ना बम धकेल के मार दिया। कितने तरफ तरफ के मौत हुआ होगा, कितने उनके परिवार पे क्या बीतता होगा। उनके किसी परिवार जो जीवित रहा है, सोचिए उन पे क्या बीतता होगा। तो सोचिए कहाँ इंसानियत है। क्या आपने, कौन से इंसानियत पे आपने आवाज़ उठाया है और मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ा है? तो उस नेता को क्या बोलिएगा आप? अच्छा मानिएगा या बुरा मानिएगा, खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं कई सारे मीटिंग्स वगैरह लेते रहता हूँ जूम पे। डेली कुछ न कुछ मीटिंग्स होते रहते हैं। मुझे जब भी समय मिलता है मैं अपनी बातें रखने की अब कोशिश करूँगा। अब मैं पूरी तरह से लाइव आकर के तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समाज और सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। प्रॉट होता क्या है, प्रॉट से समाज का कैसे उत्थान होगा, एक यही विकल्प है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी जो बना है ये वर्तमान में, वो कितना घातक है स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप जानते हैं मैं आनंद मार्गी हूँ। मेरा रिलीजियस, मेरा जो धर्म है वो आनंद मार्ग है। बाकी जो दुनिया में है सब मजहबे हैं, उसकी प्रॉपर कोई थ्योरी नहीं है। इंसानियत को, जो धर्म है इंसानियत को नीचे दिखाने की कोशिश करता है,
जातिवाद का भेदभाव पैदा करता है, इंसान में भेदभाव पैदा करता है। वो धर्म नहीं होता है, वो मजहब होता है। कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने जो है, बुद्धि तो है नहीं लेकिन बुद्धि से जी रहा है, तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कैसे लोगों को नीचे दिखा करके, मूर्ख बना करके उसका शोषण किया जाए। अब वही अभी कई हजार सालों से वही शोषण होते हुए आ रहा है, चल रहा है समाज में। यही एक देश था जहाँ पे जो है स्तन ढकने पे भी टैक्स लिया गया है, और क्या क्या न प्रथा है, दासी प्रथा चल रहा था, और क्या क्या न प्रथा चल रहा था, ना जाने। बलि प्रथा तो हालांकि अभी भी कई जगह चल रहा है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। सोचिए ना कि कौन ऐसी देवी देवता होगा जो जीव खाता होगा। क्या खाता है क्या सच में वो इंसान खाता है? तो देवी देवता के नाम पे अभी भी जो है ना, वो खाने के वो लूट रहा है। कोई प्रकृति की चीजें होगा तो ऐसा कभी नहीं सोचेगा, न करेगा। आपको अपनी जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है तो अपनी जान है प्यारी, वो चढ़ा करके देखो। अपने बच्चे की बलि दे करके देखो, पता लग जाएगा कि दूसरे दिन जो है ना बलि प्रथा का जो है ना भूत न उतर गया तो बताना। और दूसरी चीजें है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण न जाने कितने लाखों केसेस डेली आ रहे हैं, हम लोगों के पास आते हैं। उसका मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। कई सारे केसेस है, वीडियो है, आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो सबसे बड़ा कुप्रथा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। न दहेज लो या न दो, ये दोनों चीज़ें एक जुर्म है, अभिशाप है। दूसरी बातें है, समाज में जो प्रथा है, कुप्रथा है, प्रथा नहीं है, कुप्रथा है, वो है एक मृत्यु का। मृत्यु जो सोचिए जरा, उस घर परिवार में मरा है आदमी, उस पे जा करके उसके मरने के बाद उस पे जो है ना उसके सहानुभूति में खड़े होना चाहिए, उसके दुख सुख में खड़े होना चाहिए। तो वो लोग क्या करता है, उसके मरे हुए व्यक्ति के ऊपर जो है ना भोज खाता है, उसके मरने के उपलक्ष्य में खाता है। सोचिए, इसका मतलब है कि मरने के आपको खुशी था, आपको कोई दुख नहीं है उसको। जो उसमें बिजनेस चला रहा है, आप भली भांति जानते हैं कौन बिजनेस उसमें अपना रोटी सेक रहा है। ये प्रथा भी बंद होना अति आवश्यक है, ये सबसे बड़ा घातक है आज के डेट में। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। इस कुप्रथा के इस खिलाफ मैं हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ, इवेंट्स वगैरह करते रहता हूँ ताकि लोग जागरूक हो। धीरे धीरे कई ऐसे गांव हैं जो अपना खुद, वहाँ के जो मुखिया मर्डर होते हैं, जो गांव के मुखिया आदमी होते हैं, उन्होंने अपने स्तर पे इसका डिसीजन लिया है। डिसीजन लेकर के कई जगह तो बिल्कुल बंद कर दिया है इन तमाम चीज़ों को। तो मुझे उनको आज मैं इस लाइव के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, ताकि मैं आपके इस अच्छे सोच और कर्म के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। आपने समाज को नई दिशा दिया है, नई प्रेरणा दिया है, जीने की कला दिया है, प्रेरित किया है, नई सोच के आइडियोलॉजी के साथ कुप्रथा को बंद किया है, अपनाया है नव्य मानवतावाद को। थैंक यू सो मच।
जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें चलते हुए आ रहा है वही सही हो। नई चीज़ें के जानना जरूरी है, नई चीज़ों के साथ जुड़ना भी जरूरी है। और नीट और आईआईटी के जो नीट के जो खास करके नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार आपके क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहेगा, क्योंकि बनाया ही इसी तरह से, इतनी जल्दी बना रहा है, इतनी चीज़ें अलग अलग तरह से सेट कर रहा है, तो इस बार थोड़ा सा हार्ड रहेगा, कट ऑफ भी हाईएस्ट जाएगा। तो ध्यान से अपनी समझदारी के साथ रेगुलर टेस्ट दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, पढ़िए, एनालिसिस कीजिए क्वेश्चन की। जो टेस्ट देते हैं रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस कीजिए। हमसे जुड़ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार से बात करना है, मदद हेल्प चाहिए तो मैं आपको, या सुझाव चाहिए तो बता सकता हूँ, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। फिर हम मिलते हैं जब मुझे समय मिलेगा। मैं ऐसे ही आकर के जनरल बातें, जनरल जो रिक्वायरमेंट है देश में, उन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करता रहूँगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बाबा नाम केवलम।